So this last part covers the discussion about the common type of galvanic cells or the batteries which we use in our daily life. तो बहुत सारे appliances में daily life में we use the galvanic cells which converts the chemical energy into electrical energy. Now these common type of galvanic cells include two types and they are classified into primary galvanic cells and secondary galvanic cells. Primary galvanic cells are those which are non-rechargeable. Non-rechargeable matlab the chemicals which are present in this type of galvanic cells, once they are consumed, the cell has to be discarded. Matlab the chemicals can't be regenerated in such type of galvanic cells. तो normally जो clocks या appliances में हम AA या AAA टाइप के सेल्स यूज करते हैं, उसमें नॉन रिचार्जेबल टाइप के सेल्स आते हैं, एवर रेडी के, पैनासोनिक ब्रांड्स के. तो वहां पर वो सारे सेल्स जो है प्राइमरी होते हैं क्योंकि उनमें रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं होता है. बट वैसे टाइप में वी ऑल्सो हैव द रिचार्जेबल टाइप ऑफ सेल्स. सो दोज रिचार्जेबल सेल्स आर called as secondary galvanic cells. They can be recharged. So जब हम बोलते हैं can be recharged मतलब उसमें once the chemicals get consumed to generate electricity, the chemicals in that can be regenerated so that it can be used over and over again. जैसे अपने मोबाइल की बैटरीज होती है या फिर डिजिटल कैमराज में जो बैटरीज आता है, लिथियम आयन बैटरीज, they are all secondary type of galvanic cells which have the capacity to regenerate and to be used again and again. Fine. So galvanic cells दो type के होते हैं, primary and secondary. Primary are those which are non-rechargeable and secondary are those which can be recharged. अब सबसे simplest वाला galvanic cell is dry cell, which was invented by Lake-Lange, and it is also named as Lake-Lange cell. And these are the common AA cells which we use in our daily life. ठीक है. अब अगर आपने इसको ब्रेक करके कभी क्यूरियोसिटी से ओपन करने की कोशिश की हो तो यू माइट फाइंड सम ब्लैक पाउडर कमिंग आउट ऑफ दिस. ठीक है. तो बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें सेल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसका सेल फॉर्मुलेशन क्या होगा. ठीक है. तो ये सारी चीजों को यहाँ पर आपको समझना है. कंस्ट्रक्शन एंड सेल रिएक्शन, दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चंस कम ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली. ठीक है. तो let's look at the dry cell or the Lake-Lange cell construction. So this dry cells consist of the outer container which is made up of zinc. जो outer container होता है that is made up of zinc, and that zinc container itself act as the negative terminal or the anode. तो आपने देखा रहेगा बॉटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और ऊपर the center part has a positive charge, right? So the container is made up of zinc and that itself act as the anodic compartment having a negative charge. इसलिए नीचे bottom के ऊपर negative charge दिखता है. At the center we have a brass cap or the metal cap through which a graphite rod is introduced, and that graphite acts as the cathode or the positive terminal. कैथोड इज पॉजिटिव इन अ गैल्वेनिक सेल. तो ऊपर एक ब्रास कैप लगा रहता है, आप देख सकते हो ये मेटल या ब्रास कैप है और इसके बीच में देयर इज ग्रेफाइट रॉड. अब पूरा खेल या जो सेल रिएक्शंस है वो इन दोनों के बीच में क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. सो बिटवीन द ग्रेफाइट व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट टचिंग द जिंक कंटेनर, between the graphite and the zinc container we have first of all a paste of MnO2 and carbon. rather than paste actually powdered form रहता है, इसलिए जब आप तोड़ते हो इसको तो black powder you can see coming out. That is basically the carbon powder along with MnO2, manganese dioxide, जिसको pyrolusite भी बोलते हैं. MnO2 is also called pyrolusite. And the rest of the cell is covered with a viscous paste of ammonium chloride and ZnCl2. Ammonium chloride and ZnCl2. तो अगर आप कंस्ट्रक्शन को सिंपल वे में देखो तो सेंटर के ऊपर कार्बन है which is acting as the cathode compartment.
कार्बन के बाद देयर इज MnO2 एंड कार्बन का पेस्ट या पाउडर्ड फॉर्म, उसके बाद NH4Cl एंड ZnCl2 का विस्कस पेस्ट है, एंड फाइनली देयर इज अ जिंक कंटेनर व्हिच इज एक्टिंग एज द एनोड। ये सीक्वेंस ध्यान रखो, अब सेल रिएक्शन जब बताऊंगा यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू रिलेट। कंस्ट्रक्शन सिंपल है, सेंटर पे कार्बन, देन MnO2 प्लस कार्बन पाउडर फॉर्म, देन अ विस्कस पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2, एंड देन वी हैव अ जिंक कंटेनर एक्टिंग एज द एनोड। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इन द ड्राई सेल दे आर विस्कस, none of the component is aqueous or liquid form, that is why this type of cells are named as dry cells। ये completely dry नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई aqueous component नहीं है इसलिए इसको dry बोला जाता है। We do have a viscous or a thick paste of ammonium chloride and zinc chloride। Fine। अब coming to the cell reaction। Cell reaction galvanic cell का लिखने के लिए एक कॉमन सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले यू ऑलवेज थिंक ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विल माइग्रेट टुवर्ड्स द cathode and will be gained, and there it will undergo reduction। So this is the spontaneous redox reaction which will take place। तो हमने क्या करना है, एनोड का रिएक्शन लिखो फिर कैथोड का रिएक्शन लिखो, दोनों का ऐड करो, यू विल गेट द नेट रिएक्शन। तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, हाफ रिएक्शन एट एनोड, हाफ रिएक्शन एट कैथोड एंड द नेट सेल रिएक्शन। नाउ टेल मी व्हिच इज द एनोडिक कंपोनेंट? Zinc। And we know that zinc as a metal will undergo oxidation by losing 2 electron to form Zn2 plus aqueous। Now this 2 electrons will be gained by the cathode। अब कैथोड के कंपार्टमेंट में गोइंग बैक टू द कंस्ट्रक्शन, यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम आयन गेन करेगा। Now have a look at this। Ammonium ion is actually consisting of ammonia and H plus। Do you agree? Yes sir। And H plus ion जो है that is the species which actually gain the electron। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? H plus। तो अब यहाँ पर अमोनियम के 2 मोल्स है which actually I can split up and write 2NH3 and 2H plus। Just have a look at this। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझा तो रिएक्शन याद रह जाएगा आपको। 2 moles of ammonium is equivalent to 2 moles of ammonia and 2 H plus ion। Now this 2 ammonium ions में से the 2 H plus वाला part gains the 2 electrons, and 2 H plus जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा? H2। and the ammonia will be separated out as it is in the viscous form, मतलब liquid form में। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा इनफ्लेमेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जैसे ही बनता है ना, इट इमीडिएटली इज एब्जॉर्ब्ड और रिएक्टेड विथ MnO2। नाउ लुक एट द सीक्वेंस अगेन। तो यहां से अमोनियम से H2 निकला, H2 ने MnO2 के साथ रिएक्ट कर दिया। सिंपल है ना, सीक्वेंस खाली फॉलो कर रहा हूं मैं। तो अब यहां पर H2 will react with MnO2 in the ratio 1:2। Now here H2 acts as a reducing agent, so it itself will undergo oxidation, and hydrogen will oxidize to give water। Hydrogen will oxidize to give water। तो MnO2 का एक ऑक्सीजन ये लेकर गया। अब Mn is in the +4 oxidation state over here। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, MnO2 is acting as oxidizing agent। It will undergo reduction and will form Mn2O3 solid in the +3 oxidation state। So manganese you can observe is clearly undergoing the reduction reaction।
ठीक है, अब यहाँ पर व्हेन यू राइट द नेट कैथोड रिएक्शन, व्हाट इज द कॉमन स्पीशीज व्हिच यू कैन कैंसिल ऑफ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन काफी ज्यादा इनफ्लेमेबल है, तो मैंने बोला जैसे ही वो रिएक्ट जैसे ही वो प्रोड्यूस होता है, इट इज इमीडिएटली रिएक्टिंग विथ MnO2। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं MnO2 H2 को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ कार्बन का पाउडर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं हम, सो दैट हाइड्रोजन कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड, रादर एड्सॉर्ब्ड बोल सकता हूं मैं। ठीक है, हाइड्रोजन इजिली एड्सॉर्ब होगा और MnO2 के साथ रिएक्ट करके वाटर और Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओवरऑल रिएक्शन यू कैन सी एट द कैथोड इज 2 moles of ammonia reacting with 2 moles of MnO2 gaining the 2 electron। अब स्टेप बाय स्टेप सोचो, इसमें से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाया, H2 ने MnO2 के साथ कंबाइन होकर H2O बनाया प्लस Mn2O3 बनाया, और अमोनियम में से अमोनिया को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर रिएक्शन याद रखना बहुत सिंपल है। क्लियर? यस सर। अब ये दोनों रिएक्शन को व्हेन यू ऐड अप यू विल गेट द नेट रिएक्शन, और नेट रिएक्शन में व्हाटएवर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट हैज टू बी गेन्ड, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस होगा। तो अब करना क्या है, जिंक को यहाँ पर लेफ्ट में ऐड कर दो, Zn2 प्लस को राइट में ऐड कर दो। ये एक्वियस इसलिए लिखा है बिकॉज पूरे रिएक्शन में वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, और वही वाटर ये आयंस को एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर मैंने Zn2 प्लस एक्वियस लिखा हुआ है। ठीक है, सो नाउ द नेट रिएक्शन इज जिंक सॉलिड combines with the ammonium ion along with the MnO2 solid, zinc gets converted into Zn plus 2, अमोनियम से अमोनिया निकल जाता है और H प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके फाइनली वाटर में कन्वर्ट होता है, और MnO2 Mn2O3 में कन्वर्ट होता है। खाली एक एक कंपोनेंट का कन्वर्जन सोचो, आपको रिएक्शन क्लियरली याद आ जाएगा। There's nothing more to remember in it, just understand. So once again, zinc is undergoing oxidation at the anode, and MnO2 through the NH4 plus ion is undergoing reduction via hydrogen at the cathode. Clear reaction? यस सर। Now ये जो cells है, इसमें कुछ drawbacks भी है। ये cells when you keep it in the appliance and if it is not working for a very long period of time, what do you observe? Sorry? They leak. So leakage किसकी वजह से हो रहा है? Can you tell me now from the reaction? लीकेज किसकी वजह से हुआ? Who is the culprit in the net reaction? Tell me. लीकेज क्यों होगा? क्योंकि ये वाटर जिंक के कंटेनर को अटैक करेगा, और पानी और जिंक कंटेनर जब कांटेक्ट में आएगा तो मेटल विल स्टार्ट अंडरगोइंग करोजन। तो आपने देखा होगा वहां पर वो करोड भी हो जाता है, और करोड होने के साथ साथ लीक करता है। तो यहाँ पर वाटर ही पूरे प्रॉब्लम की जड़ है। The root cause of the problem of this type of cells undergoing a leakage and undergoing corrosion is water। इसीलिए ये वाले सेल्स जो है कम ड्यूरेबल है और कम एफिशिएंट भी है। ठीक है, वन टाइम यूजेबल है और कम एफिशिएंट है। तो अब यहाँ पर मार्केट में हमारे पास कुछ ऐसे टाइप के सेल्स भी आते हैं जो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा ड्यूरेबल भी है। आपने एड्स भी देखा रहेगा उसका। कैन यू नेम वन ऑफ देम? लंबी रेस का घोड़ा, 10x टाइम फास्टर, मोर ड्यूरेबल। सुना है कि नहीं? अरे गधो, जवाब दो। ड्यूरासेल सुना ही रहेगा ना सबने, है ना? एड्स में मस्त बताते हैं, ये मैस्कट भी है ड्यूरासेल का।
सब लोग को पीछे छोड़ के आगे चला जाता है। तो व्हाट इज देयर इन द ड्यूरासेल दैट इट इज मोर ड्यूरेबल, more durable and more efficient and more faster. ठीक है, the reason for the dry cells having less efficiency and less durability is the water component which is getting formed. अब अगर आप ट्रेस करते जाओगे तो वाटर बनने का रीजन क्या है? What is the reason of water getting formed? NH4 plus. NH4 प्लस। मतलब अगर ट्रेस बैक करोगे तो हाइड्रोजन इसका मेन प्रॉब्लम था, और हाइड्रोजन बनने का रीजन था H प्लस आयन, और H प्लस अपना प्रेजेंट था अमोनियम में। मतलब बेसिकली ये जो सेल्स होते हैं ना, दीज आर एसिडिक ड्राई सेल्स, and the acid component, the H plus ion present in them is the problem for their less efficiency and less durability. तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च के बाद ये ऑब्जर्व किया कि अगर एसिड की जगह अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए तो सेल की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, और सबसे पहला कंपनी ये करने वाला था ड्यूरासेल। मोर ड्यूरेबल, उससे ही उसका नाम भी आया ड्यूरासेल, more durable cell. And what was the main important part in that? The alkaline component replaced in place of acidic. तो पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर सेम है, खाली अमोनियम इलेक्ट्रोलाइट की जगह हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट यानी कोई भी अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है, NaOH या KOH, और any of the alkaline medium can be okay here. Construction remains the same. So now look at the change and the beauty in the reactions. Once again, at the anode, the zinc container will undergo oxidation to form Zn2 plus ion with the loss of 2 electrons. But now this zinc ions combine with the 2OH minus, which is the electrolyte in the alkaline cells. और यहां पर ये जिंक के आयन ऑक्सीडाइज करके ZnO बना देते हैं, जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म, प्लस 2OH माइनस में ऑक्सीजन निकलने के बाद वाटर फॉर्म होता है। तो आप सोचोगे यहां पर भी वाटर तो बन रहा है, लेकिन खास बात यह है कि ये वाटर एनोड पे बन रहा है, जो कि अब कंज्यूम होने जा रहा है एट द कैथोड। कैसे? सो कैथोड में अपना वही है MnO2, मैंने बोला ना कंस्ट्रक्शन सेम ही है, जिंक अपना एनोड है और MnO2 का कंपोनेंट कैथोड है। अब ये MnO2 वाटर के साथ कंबाइन होता है in the ratio 2:1 by the gain of 2 electrons which are lost in the anodic half reaction. Once again the Mn ka plus 4 reduces into Mn ka plus 3 and it gives you same compound Mn2O3 solid. and अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन और वाटर कंबाइन होकर H2O2 देगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2OH माइनस दे देगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब फाइनली यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब लुक एट द ब्यूटी इन द नेट रिएक्शन। व्हाट आर द कॉमन स्पीशीज व्हिच कैन बी कैंसल्ड? बोलो। OH minus. So the electrolyte which we had used is getting consumed and then regenerated. मतलब it is just acting as catalyst. ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है? H2. वाटर पहले फॉर्म हुआ फिर कंज्यूम हो गया, मतलब इट इज एक्टिंग एज intermediate, and the 2 electron lost has to be gained over here for the balancing of the redox. And now look at the beauty. Zinc solid combines with 2 MnO2 and converts itself to zinc oxide, and MnO2 converts to or reduces into Mn2O3. इतना छोटा सा रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन में आप देख रहे हो the products are all solids. There is no liquid or aqueous components which are present over here. तो जो लीकेज का प्रॉब्लम एसिडिक ड्राई सेल्स में होता है वो ड्यूरासेल या फिर अल्कलाइन ड्राई सेल्स में नहीं होगा, because there is no water component which is present in the net reaction, and that is the main reason for the Duracell to be more durable and more
efficient. Understood? Yes, अरे sir. हाँ कि नहीं? और एक चीज, ये जो जिंक आयंस है ना यहाँ पर, तो जिंक आयंस कंबाइन विद द अमोनिया विच इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन, एंड जिंक आयन और अमोनिया के बीच में क्या बन सकता है? कैन यू गेस? ट्रांजिशन मेटल है और ये लोन पेयर डोनर है, कुछ याद आ रहा है? Coordination compound. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन सकता है. एंड व्हाट इज द रेशियो इन विच दे कैन रिएक्ट? जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6. 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4. जिंक के मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4. एंड सिंस अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, यहाँ पर +2 का चार्ज होगा और इसके साथ 2 Cl- जो अमोनियम के 2 क्लोराइड है ना, वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. मतलब ओवरऑल यहाँ पर जिंक +2 और अमोनिया एक्चुअली कंज्यूम हो जाते हैं, और Mn2O3 सॉलिड है जो इंटरफियर नहीं करता है. एक ही प्रॉब्लमेटिक कंपोनेंट यहाँ पर बचता है, वो है पानी. और ये पानी का मेन रीजन क्या है? H+ आयन. इसीलिए एसिडिक ड्राई सेल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है H+ आयन, और इसी को सॉल्व किया by replacing that with the alkaline electrolyte. That is the difference between the acidic and the alkaline dry cells. Understood? Yes, sir. फिर तीसरा टाइप का सेल्स है मर्क्यूरी सेल्स, जिसको बटन सेल्स भी बोलते हैं, जो अपने वॉचेस में यूज होता है, इयरिंग एड्स में यूज होता है, छोटे छोटे अप्लायंसेज में, ठीक है, छोटे छोटे गिफ्ट्स में या छोटे छोटे टॉयज में ये यूज करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड मर्क्यूरी सेल्स. नाउ यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सिमिलर है टू द अल्कलाइन ड्राई सेल. सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पर मैंगनीज के डाइऑक्साइड की जगह मर्क्यूरी का ऑक्साइड यूज किया है. खाली याद रखो, मर्क्यूरी सेल में MnO2 is replaced by HgO. Now look at the reaction, you will relate to it. Zinc solid undergoes oxidation to form +2, combines with the alkaline electrolyte to form zinc oxide and water. अब ये वाटर जो बना है वो कंज्यूम हो रहा है एट द कैथोड विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड. अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मर्क्यूरी का +2 changes to mercury, that is 0, and the OH- is regenerated. Once again यहाँ पर OH- आपका कैटलिस्ट का काम कर रहा है, water is the intermediate, 2 electrons lost is equal to 2 electrons gained, and now the zinc and mercury oxide is combining, and zinc oxidizes, mercury reduces to form ZnO and Hg. Exactly similar है कि नहीं? Yes, sir. तो अल्कलाइन ड्राई सेल के बाद मर्क्यूरी सेल याद रखना है, ये आपको नोट करना है, ये नोट्स में नहीं है, टू बी नोटेड. मर्क्यूरी सेल का रिएक्शन खाली याद रखो, सिमिलर टू अल्कलाइन ड्राई सेल with one change, MnO2 replaced by HgO. इसमें भी आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल सा है. There is zinc powder as the negative negative electrode or the anode. Then the electrolyte is of the alkaline medium potassium hydroxide, and there is silver का ऑक्साइड या फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड. सिल्वर ऑक्साइड भी कहीं बार यूज करते हैं, या फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये नोबल मेटल्स का ऑक्साइड यूज करते हैं बेसिकली. तो सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, और आउटर कोटिंग जो होता है वो सिल्वर का होता है, इसलिए कई बार इसको सिल्वर सेल भी बोलते हैं, मर्क्यूरी सेल भी बोलते हैं. बोथ आर करेक्ट नेम्स. बटन सेल्स भी बोलते हैं. क्लियर विद ऑल दिस? Yes, sir. Now we come to the next type, that is lead storage cell या lead accumulator. ये एक्साइड वाली बैटरीज जो आप कार्स में यूज करते हैं ना, जिनको स्टोरेज बैटरीज भी बोलते हैं, तो इनको कार स्टोरेज बैटरीज बोलते हैं, एंड दे आर सेकेंडरी गैल्वेनिक टाइप ऑफ बैटरीज. सेकेंडरी मतलब दे कैन बी Rechargeable.
रिचार्ज्ड, ये रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, तो कार स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, या लेड का प्लेट्स होता है इसलिए लेड अक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज सेल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है। अब क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी सेल है, मतलब टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अपने मोबाइल की बैटरीज जब यूज होती है, इट्स एक्चुअली अंडरगोइंग डिस्चार्जिंग, and during that the chemical energy stored in the battery is getting converted into electrical energy. तो आपका मोबाइल फोन जब पूरा चार्ज होता है 100%, एंड एज यू गो ऑन यूजिंग इट, इट ड्रॉप्स टू 90, 80, 50, 20, और एक बार 20 पे आ जाता है तो इंडिकेशन आता है बैटरी लो, देन यू चार्ज इट। अब जब चार्ज करते हैं तो यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग एन एक्सटर्नल ईएमएफ थ्रू द चार्जर, and for the charging to take place the external EMF must be equal, greater or less than the battery का EMF, greater, greater, तभी तो आपका सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, also रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। तो चार्जर का यही काम होता है। ठीक है, तो नाउ दिस इज हाउ द लेड स्टोरेज बैटरी अपीयर्स इन रियलिटी। उसका क्रॉस सेक्शन व्यू अगर सिंप्लीफाइड व्यू देखेंगे तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो देयर इज अ प्रोटेक्टिव केसिंग ऑफ नॉर्मली पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का रहता है, या कोई भी एसिड प्रूफ कंटेनर ले सकते हो। उसके अंदर देयर आर लेड प्लेट्स विच आर ऑल्टरनेटली अरेंज्ड। यहाँ पर 4 प्लेट्स दिखाए गए हैं, 1, 2 एंड 3, 4, मैं नंबर कर रहा हूँ। आप ऑब्जर्व करोगे कि 1 and 3 प्लेट आर कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑल्टरनेट है, दे आर कनेक्टेड टुगेदर एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, and they act as the negative terminal of the battery, meaning the anode compartment, and these are the lead plates which are packed with spongy lead. अब इसका मतलब क्या, नॉर्मली यहाँ पर कुछ सब्सटेंस का डिपोजिशन, अक्यूमुलेशन या एड्सॉर्प्शन होने वाला है। तो फॉर द बेटर एड्सॉर्प्शन देयर इज अ कोटिंग ऑफ स्पॉन्जी लेड व्हिच इज डन ओवर हियर। मतलब जो लेड प्लेट है ना, उसमें छोटे छोटे स्क्वेयर्स बनाए जाते हैं सो दैट देयर इज इफेक्टिव एड्सॉर्प्शन। बेसिकली यहाँ पर हम सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नॉर्मली ग्रेफाइट के प्लेट को भी हम कोट करते हैं ना, सॉरी प्लेटिनम के प्लेट को भी हम कोट करते हैं विद प्लेटिनम ब्लैक, so that the adsorption is more effective and more efficient, right? वैसे यहाँ पर भी there is lead plate which is packed with spongy lead, मतलब coating of lead is done on top of it for the better adsorption. क्या एड्सॉर्ब होगा वो आपको रिएक्शन में समझेगा। तो ये हो गया आपका एनोड। तो एनोड पे कौन है, लेड प्लेट, याद रखो। उसके बाद there is alternate plates second and fourth which are connected in series and they are connected to the positive terminal of the battery which will act as the cathode. और यहाँ पर भी lead plates है but now they are packed with PbO2, lead का डाइऑक्साइड। एनोड पे लेड है और कैथोड पे लेड का डाइऑक्साइड है, ध्यान रखो। एंड देन दीज लेड प्लेट्स आर इमर्स्ड इन अ solution of 38% H2SO4. Concentration is maintained equal to 38%, that is optimum for the car batteries to work. कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। एसिड प्रूफ कंटेनर, उसके अंदर लेड प्लेट्स ऑल्टरनेटली अरेंज्ड, एनोड पे लेड प्लेट्स है, कैथोड पे लेड विथ लेड डाइऑक्साइड का प्लेट्स है, और उनको H2SO4 में डिसॉल्व कर दिया, बस। अब रिएक्शन को समझते हैं। ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज व्हेन द कार बैटरी इज अंडरगोइंग डिस्चार्ज। मतलब जब वो कार्स में यूज कर रहे हैं हम लोग, तब वो इस अरेंजमेंट में दिखेगा। तो दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो अब जो सेल रिएक्शंस मैं बताने जा रहा हूं वो डिस्चार्जिंग का बता रहा हूं। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग जब होगा, the chemical energy stored is getting converted into electrical energy, and that's how the AC or the other electrical parts of the cars run. ठीक है, उसके लिए ही तो बैटरी चाहिए, राइट, इग्निशन करने के लिए। अब डिस्चार्जिंग में सबसे पहले रिएक्शन को शुरू करो एट द एनोड। एनोड पे कौन है,
एनोड पे कौन? सो रहे हो क्या तुम लोग? क्या बोला था मैंने? एनोड पे कौन है? कौन 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 है? कौन है? लेड। याद रखो, उससे ही आपको रिएक्शन याद रहेगा. सो जस्ट रिमेंबर what are the components at the anode and cathode. That is the first thing you will start. तो एनोड पे कौन? लेड. लेड इज अ मेटल, will undergo, बोलते जाओ, oxidation by losing electron. 2 electrons to form lead plus 2. Now this lead plus 2 ions will combine with the sulfate ions which are already present in the H2SO4, and lead ion and sulfate will combine to form PbSO4 solid, and this PbSO4 starts getting adsorbed or deposited on the lead plate. उसी के लिए स्पॉन्जी lead यूज किया गया है. समझा? खाली सीक्वेंस ध्यान रखो. लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है टू लेड प्लस टू, लेड प्लस टू कंबाइन हो रहा है सल्फेट के साथ टू फॉर्म PbSO4. अब जब इसको आप एड अप करोगे तो यू विल गेट द नेट रिएक्शन एट द एनोड. नेट रिएक्शन एट द एनोड, जहां पर Pb प्लस टू इज द इंटरमीडिएट कैंसिल किया. तो नाउ द Pb सॉलिड is combining with the sulfate ion and losing the 2 electron or undergoing oxidation to form PbSO4. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस हुए that will migrate to कैथोड. और कैथोड पे कौन? कैथोड पे कौन? कैथोड पे कौन? हेलो, am I audible? हेलो हेलो. आकृति, राई, गौतम, am I audible? हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. अरे तो रिप्लाई करो ना गधो. कैथोड पे कौन? लेड डाइऑक्साइड. हाँ, तो ऐसा बोलने का. कैथोड पे कौन? लेड डाइऑक्साइड. वेरी गुड. सो अब लेड डाइऑक्साइड में लेड इज इन व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट? प्लस Plus 4. Plus 4. That will get reduced by gaining 2 electron to form Plus 2. plus 2. And this plus 2 of the lead will combine with sulfate again to give lead sulfate, which will again get deposited on the second and fourth वाला plate. यहाँ पे deposit होना शुरू कर देगा. ठीक है? And now the oxygen or the oxide ions of the PbO2 combines with the 4H plus ions of the acidic solution. अब 4 H plus और 2 ऑक्साइड आयंस कंबाइन होकर 2 पानी देगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर. तो अब लुक एट द ब्यूटी अगेन, द नेट रिएक्शन. एक बार आपने हाफ रिएक्शन लिख दिया ना, फिर नेट रिएक्शन तो सिंपल है. कुछ कॉमन टर्म्स है तो कैंसिल कर लो और बाद में सिंपली ऐड कर दो. इसमें एज सच कुछ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली कॉमन होने ही चाहिए, क्योंकि जितने लॉस्ट उतने गेन, तभी तो रिडॉक्स बैलेंस्ड. अब यहाँ पर नेट रिएक्शन वापस अगर मैं समझा के लिखूं विदाउट इवन लुकिंग एट द रिएक्शन, इट्स इजी. द लेड फ्रॉम द एनोड and the lead dioxide from the cathode are combining with 4H plus and 2 sulfate, right? Yes, sir. Both the lead from the electrodes are getting converted to, PbSO4. तो यहाँ पे 2 moles of PbSO4 आया, एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहा है? Water. वाटर. खत्म.
यही रिएक्शन आप देखोगे तो मैंने ऐड कर दिया, लेड एंड लेड डाइऑक्साइड combines with the sulfate and 4H+. तो ओवरऑल 4H+ और 2 moles of sulfate जो होता है that is equivalent to 2H2SO4, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो बेसिकली यहाँ पर 2 moles of sulfuric acid gets consumed during the overall net reaction. तो अब मेन फंडा क्या है, यहाँ पर ये जो सेल है उसका EMF डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4. EMF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 पे डिपेंड कर रहा है. अब एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, व्हाट्स हैपनिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4? पानी यहाँ पर बन रहा है, तो पानी जाके मिक्स हो जाएगा एसिडिक सोल्यूशन में, मतलब द एसिड इज गेटिंग डाइल्यूटेड. मतलब बेसिकली यहाँ पर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज decreasing. That's why the EMF is decreasing. इसलिए जैसे जैसे कार की बैटरी यूज होती जा रही है कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और EMF भी डिक्रीज हो रहा है. अंडरस्टूड? Yes, sir. अब अगर आप ध्यान से देखो, आफ्टर द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड ऑन द लेड प्लेट there is what getting accumulated, PbSO4. and that is in contact with what? लेड प्लेट के ऊपर PbSO4 है और वो प्लेट किसके कांटेक्ट में है? H2SO4. So can you tell me the type of electrode which is getting generated over here? PbSO4, H2SO4. Metal and sparingly soluble salt. सुपर. मेटल, उसके ऊपर उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट और उसके साथ अनायंस ऑफ द सॉल्ट. याद आ रहा है? AgCl Cl- is a metal sparingly soluble salt. यहाँ पर बन क्या रहा है? Pb is in contact with PbSO4, it's sparingly soluble salt. लेड, सिल्वर, मर्क्यूरी के सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इसीलिए वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं. और फिर वो कांटेक्ट है विद द अनायंस. ठीक है? एंड ऑन द अदर हैंड वापस ये सल्फेट PbSO4 के कांटेक्ट में है और फिर वो PbSO4 PbO2 के ऊपर है, हाँ कि नहीं? तो ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है. हो गया सेल फॉर्मुलेशन. They are basically, मतलब this particular cell is made up of metal sparingly soluble salt electrodes. दोनों ही metal sparingly soluble salt electrodes का टाइप है. समझा? Yes, sir. तो अब यहाँ पर डिस्चार्जिंग के टाइम तो हमें समझ में आ गया. अब जब हम चार्जिंग करते हैं, ठीक है, तो कार की बैटरीज में या फिर कोई ऐसे अप्लायंसेस जहां पर ऑटोमेटिक चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटर. ऑल्टरनेटर एक स्विच होता है जो क्या करता है, जैसे ही वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के नीचे चला जाता है और उसको चार्ज करने के लिए रिक्वायरमेंट आता है, तो ये ऑल्टरनेटर क्या करता है, स्विच को ऑल्टर कर देता है. मतलब जैसे ही वो ऑल्टरनेट करेगा तो द सेल रिएक्शन विल गेट रिवर्स्ड. द एनोड नाउ विल बिकम द कैथोड एंड द कैथोड विल नाउ बिकम द एनोड. और ये ऑल्टरनेटर कैसे ऑल्टरनेट करेगा? It will provide an external EMF which is greater than Cell EMF. the cell EMF. तभी तो ऑल्टरनेट हो पाएगा ना. चार्जर क्या करता है? एक्सटर्नल EMF ज्यादा प्रोवाइड करता है देन द बैटरी का EMF. तो जो मोबाइल की बैटरीज होती है नॉर्मली वो 3.5 वोल्ट लिथियम आयन बैटरीज होती है. अब पहले के टाइम पे अगर 7-8 इयर्स डाउन द लाइन जाते हैं तो मोबाइल फोन्स को बहुत हैवी आते थे. जैसे नोकिया का 3310 बहुत फेमस मॉडल है, कभी ना कभी आपने देखा होगा या यूज तो किया ही होगा. ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैवी था और उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका बैटरी था जो हैवी था. तो पहले के टाइम पे बैटरीज बहुत हैवी आती है, बट आजकल के जो मोबाइल फोन्स आते हैं वो एकदम स्लिम ट्रिम आते हैं. दे आर वेरी लाइट. एंड द मेन रीजन
is the battery, and ये जो बैटरीज होती है वो लिथियम आयन बैटरीज होती है. एंड व्हेन आई से लिथियम आयन बैटरी, इसमें लिथियम यूज करते हैं विच इज द लाइटेस्ट मटेरियल आफ्टर हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. डू यू अग्री? लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल ना. Yes, sir. उससे Yes, भी sir. लाइट हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन को यूज करना इजी नहीं है. बट आगे हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन भी एफिशिएंटली यूज किया गया है इन मेनी ऑफ द अदर अप्लायंसेस, एंड इट इज द फ्यूचर. दिस हाइड्रोजन इज द फ्यूचर. ठीक है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है जो मैं डिस्कस करूंगा. बट लिथियम आयन बैटरीज आर वेरी लाइट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लिथियम, द लाइटेस्ट मेटल अवेलेबल इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो दो चीज ध्यान रखना है. ठीक है, बहुत बार आपने ऐसे भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर दूसरे ब्रांड का चार्जर किसी और ब्रांड के मोबाइल में यूज करते हो, तो या तो वो इफेक्टिवली चार्ज नहीं करता है, या तो बहुत स्लो चार्जिंग होता है, या चार्ज ही नहीं करता है, या फिर कभी कभी बैटरी को भी प्रॉब्लम आ जाता है. बहुत बार आपने न्यूज में देखा होगा किसी का बैटरी एक्सप्लोड हो गया है ना. ये सारे प्रॉब्लम्स आपने सुने और देखे भी होंगे. तो बेसिकली चार्जर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? It should provide an EMF which is greater than the cell EMF. Then only the charging will take place. Anything less than that will not be able to charge the phone or charge the battery of the phone. Clear है? Yes. इसलिए नॉर्मली रेकमेंड किया जाता है कि जिस ब्रांड का फोन है, जो उसका चार्जर है वही यूज करो, ताकि चार्जिंग एफिशिएंट हो और बैटरी का लाइफ अच्छा हो. ठीक है, तो अब जैसे ही चार्जिंग किया जाता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है. पहला, द एनोड विल नाउ चेंज टू कैथोड, एंड द कैथोड विल चेंज टू एनोड. मतलब द नेगेटिव टर्मिनल विल बिकम पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव टर्मिनल विल बिकम नेगेटिव. दूसरी बात, चार्जिंग के टाइम पे चार्जर इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग electrical energy, and that electrical energy is getting converted into chemical energy which is stored in the battery. मतलब now the conversion has got reversed. यानी चार्जिंग के टाइम पे गैल्वेनिक सेल acts as Electrolytic cell. electrolytic cell. Only during the discharging galvanic cell galvanic की तरह काम करता है. चार्जिंग के टाइम वही गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एंड अब नेट सेल रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा. तो आप हाफ रिएक्शन को रिवर्स कर लो और नेट सेल रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगा. तो अब अगर मैं चार्जिंग के टाइम पे नेट रिएक्शन बताऊं, तो खाली इसको उल्टा कर देना है. और जब मैं इसको उल्टा करूंगा, लुक एट द ब्यूटी अगेन. देयर इज PbSO4 which was deposited on the lead plates, combining with the water and reproducing lead at the anode and lead dioxide at the cathode, along with 2 moles of sulfuric acid also getting regenerated. तो अब जब चार्जिंग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और उसकी वजह से भी EMF बढ़ रहा है. That's how charging increases the potential of the battery, the EMF of the battery. समझा? Yes, sir. Now generally the word battery is used as a combination of cells. बहुत सारे सेल्स को अगर कंबाइन करते हैं ना, तो बैटरी बनता है. तो यहां पर कार की जो बैटरी होती है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स. एक सेल जो है ना वो लेड और लेड डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन से बनता है. और उसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं कैथोड माइनस एनोड करके थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट गिव्स मी अ वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट्स. तो एक सेल, एक कॉम्बिनेशन, मतलब एक 1 and 2 का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये एक सेल हो गया. ये दूसरा सेल की तरह काम करता है. और क्योंकि एक सेल 2 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करता है, तो दो सेल्स विल डेवलप पोटेंशियल ऑफ
4 वोल्ट्स ना। Yes, sir. और ये जो बैटरी होती है ना कार बैटरीज, ये 12 वोल्ट का बैटरी होता है जनरली। इस 12 वोल्ट को बनाने के लिए देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ 6 cells with each cell having a potential of 2 volts. ठीक है, so that's the fundamental principle behind any secondary type of galvanic cell. अब चाहे ये लिथियम बैटरीज की बात करो, कार बैटरीज की बात करो, या कोई भी रिचार्जेबल सेल की बात करो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, जब कार बैटरीज को सर्विसिंग के लिए, ये कार्स को सर्विसिंग के लिए दिया जाता है, तो कार के बैटरी का भी सर्विसिंग होता है। तो व्हाट आर द मेंटेनेंस फीचर्स विच आर इंपॉर्टेंट? यहाँ पर जो लेड सल्फेट डिपॉजिट हुआ है उसको क्लीन करना होता है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स है ये करोड हो सकते हैं बिकॉज दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। तो अगर ये बहुत ज्यादा करोडेड है तो इसको रिप्लेस करना चाहिए so that there is a better electrical contact, and concentration of the sulfuric acid is checked whether it is 38% or not. If it is not, then ये 38% को वापस लाया जाता है, मतलब there is sulfuric acid which is replaced as the electrolyte, because optimum condition जहां पर ये सेल काम करेगा, it will have the it will have the concentration equal to 38%. So these are the maintenance points which are important during the car batteries maintenance. समझा? Yes, sir. Just go through this reactions please once again, एक बार अच्छे से go through कर। Any doubts up till this? No, sir. Okay, coming to the next type, Nicad cells. नाम से ही समझ सकते हो, it's a cell which is made up of nickel and cadmium. Nicad cells are this type of cells which you generally observe. ये काफी हाई वोल्टेज सेल्स होते हैं, तो बहुत सारे हेवी अप्लायंसेस में इस टाइप के सेल्स यूज करने होते हैं। ये करीबन 9 वोल्ट्स का ईएमएफ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम से सबसे पहले, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इफ आई आस्क यू द प्लेसमेंट ऑफ निकल एंड कैडमियम, हाउ दे आर प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर? Nickel is above. निकल इज अबव कैडमियम। आपको याद रहेगा तो SHE के बाद मैंने एक सीक्वेंस दिया था, 5 वर्ड्स यू याद रखना है। सबसे पहले SHE के बाद क्या? Five things to be remembered. Latin. Latin, then Nicocad. Nicocad, FCZA. FCZA, MNC car. MNC and Kali. बस ये याद रखो, सारा सीक्वेंस आपको SHE के बाद का याद हो चुका है। सो लेटिन, निकोकैड यानी निकल, कोबाल्ट, कैडमियम। यहाँ से क्लियरली निकल इज अबव कैडमियम। Once we know the placement, nickel has to undergo reduction. यानी हमेशा मैं बोलता हूँ ऊपर वाला कैथोड, नीचे वाला एनोड, ऊपर वाला कैथोड, नीचे वाला एनोड।
तो यहाँ पर निकल इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ निकल डाइऑक्साइड NiO2 के फॉर्म में, which will act as the cathodic component, and the cadmium is used as the metal which will be acting as the anodic component. बस ये चीज याद रखो, निकल डाइऑक्साइड के फॉर्म में है और कैडमियम मेटल के फॉर्म में ही है। अब यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन को देखोगे तो बीच वाला टर्मिनल वंस अगेन इज द पॉजिटिवली चार्ज, नीचे वाला इज नेगेटिवली चार्ज, या फिर इस तरह से है तो माइनस प्लस अकॉर्डिंगली यहाँ पर इंडिकेट किया जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस है और उस तरफ प्लस रहेगा, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल वो AA या AAA टाइप के निकेट सेल्स को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल हियर विल बी द व्हिच कंपोनेंट? पॉजिटिव कौन सा होता है? कैथोड। कैथोड। सो वहां पर होगा आपका निकल का डाइऑक्साइड। अब नॉर्मली वो वाटर के साथ रहता है तो NiOOH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। तो कहीं कहीं NiOOH में रिस्पेक्टिवली दिया है और कहीं कहीं NiO2 दिया है। हम NiO2 वाला रिएक्शन ही देखेंगे जो NCERT में भी दिया है। और एनोड पे कैडमियम है विच विल एक्ट एज द मेटल, और बाकी सारा सेपरेशन वगैरह जो है वो सिमिलर टू द AA सेल्स या जो अल्कलाइन कंपोनेंट है वो यहाँ पर भी यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द गैल्वेनिक सेल्स जो रिचार्जेबल होते हैं उनमें द इलेक्ट्रोलाइट इज अल्कलाइन, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दैट इन द अल्कलाइन ड्राई सेल्स। नाउ हैव अ लुक एट द सेल रिएक्शंस। सबसे पहले एनोड पे कौन 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 कौन? कैडमियम। तो हमेशा वैसे ही याद रखो, एनोड पे कौन? कैडमियम। कैडमियम इज अ मेटल सो विल अंडरगो Oxidation. oxidation by losing 2 electrons, will form cadmium plus 2, and now this cadmium combines with the hydroxide ion from the electrolyte. अब ये रिएक्शन देखोगे तो इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू, इसके जैसा है, अल्कलाइन ड्राई सेल जिसको मैं ड्यूरा सेल बोलूंगा, है ना। वहां पे जिंक प्लस 2OH माइनस आपको दे रहा था ZnO2 प्लस H2O प्लस 2E माइनस। अब यहाँ पर कैडमियम और OH माइनस ना सीधा कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये छोटा सा चेंज है बस। बाकी थॉट प्रोसेस के लिए याद रखो सिमिलर टू ड्यूरा सेल, मतलब मेटल विल कंबाइन विद द हाइड्रोक्साइड, ये चीज याद रखो। उसके बाद these electrons will be lost, sorry, these electrons will be gained at the cathode by NiO2. NiO2। NiO2 में निकल किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4. +4। अब यहाँ पर रिडक्शन जो होगा ना, ये रिएक्शन सिमिलर होने वाला है टू, सोचो, MnO2. हमने पहले भी एक का किया ना रिएक्शन जिसमें +4 से रिड्यूस होकर +2 में आया, MnO2. PbO2 लेड डाइऑक्साइड का रिएक्शन। तो सिमिलर टू PbO2 लिख लो, तो ये स्ट्राइक होने के लिए आपके लिए बहुत आसान होगा। आप एक बार रिवाइज कर लोगे, द रिएक्शंस विल बी नोन नाउ। सो NiO2 का +4 will gain 2 electrons to form Na+2, and here it combines with the H2O liquid, और H2O लिक्विड के साथ कंबाइन करता है इन द रेशियो 1:2। हम एक्वियस यूज कर रहे हैं ना, तो वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो NiO2 वाटर के साथ अब यहाँ पर कंबाइन हो रहा है। इसमें Na का हाइड्रोक्साइड बनता है एंड द 2OH माइनस आर रीजनरेटेड। इसको अगर मैं और भी सिंपल वे में लिखूं तो 2HOH लिख सकता हूँ। तो 2OH को सेपरेट कर लो, H2 और O2 को कंबाइन करके OH ट्वाइस कर दो। समझा रिएक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Once again look at the beauty of the net reaction। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बोलो? OH-. 2OH माइनस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो बेसिकली कैटलिस्ट का काम कर रहा है।
इसलिए अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी एफिशिएंट इन द गैल्वेनिक सेल्स। तो अब यहाँ पर नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है? द कैडमियम एट द एनोड is combining with nickel dioxide at the cathode with the help of 2 moles of water, and both the metallic components are getting converted to their, दोनों के दोनों are getting converted to their Hydroxides. hydroxides। अब कोई भी सेल रिएक्शन में अगर ओवरऑल कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं ना, तो दे हैव अ वेरी हाई एफिशिएंसी, क्योंकि लिक्विड या एक्वियस कंपोनेंट्स एफिशिएंसी को कम करते हैं, जो हम एसिडिक ड्राई सेल्स में देख चुके हैं। इसीलिए सॉलिड कंपोनेंट्स आर ऑलवेज वेरी मच प्रिफर्ड इन द ओवरऑल रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द NICAD सेल्स। अंडरस्टूड? Yes. Coming to the next, we have hydrogen oxygen fuel cell. Now fuel cells क्या होते हैं? Fuel cells basically work on the principle of combustion. और combustion का principle क्या है कि कोई भी फ्यूल को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो a large amount of energy is generated. जैसे नेचुरल गैस में यानी CNGs में या फिर LNGs में, when the methane is burned in oxygen, it produces CO2 and water, and also produces a large amount of heat, because all the combustion reactions are exothermic reactions. तो इस exothermic reaction से जो heat generate होती है, that is basically converted into the electrical energy. तो यहाँ पर एग्जैक्टली हीट को हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के बीच में रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, उसको कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है? अब जनरली फ्यूल्स को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी में जो कन्वर्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली डन इन थर्मल पावर प्लांट्स, हाँ कि नहीं? Yes. फ्यूल्स बर्न करके उसमें से जो हीट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम थर्मल पावर प्लांट्स करता है। अब उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा जगह चाहिए। ठीक है? थर्मल पावर प्लांट्स के लिए देयर इज अ हाई इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड, और इसकी एफिशिएंसी जो है ना, दैट इज जस्ट अबाउट 40%। मतलब देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ लॉसेस, थर्मोडायनामिक लॉसेस विच आर इन्वॉल्व्ड। मतलब जो यूजफुल वर्क थर्मल पावर प्लांट से मिलता है एज एन आउटपुट, इट इज वेरी लेस, जस्ट अबाउट 40%। तो अब यहाँ पर इसी फंडा को हम गैल्वेनिक सेल्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, जहां पर फ्यूल्स को बर्न तो करेंगे लेकिन दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने नहीं देंगे। Look at the concept. We are not going to allow the fuel and the oxidizer to come together. तो यहां पर देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गैल्वेनिक सेल बनाया गया है। हाइड्रोजन is the fuel over here which is going to get burnt. So obviously it is going to undergo reduction, and that is the reason, hydrogen is the fuel which is going, hydrogen is the fuel which is going to undergo oxidation, and that is why it is acting as the anode. और इसको जलाने वाला है ऑक्सीजन, that is the oxidizer, and oxidizer सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, and that is the reason it is acting as the cathode. और कोई भी फ्यूल सेल में फंडा सेम है, फ्यूल आपका एनोड बनेगा, ऑक्सीडाइजर कैथोड बनेगा। ठीक है? तो दो कंपार्टमेंट्स है, एक फ्यूल का और दूसरा ऑक्सीडाइजर का। इन दोनों को डायरेक्टली कांटेक्ट में आने नहीं दे रहे। देयर आर पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर प्लेस्ड बिटवीन देम। पोरस इसलिए सो दैट द आयंस कैन पास इन बिटवीन देम। पोरस पार्टीशन इसलिए है ताकि आयंस एक दूसरे में पास कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर हम हाइड्रोजन को H+ में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीजन को OH- में कन्वर्ट करेंगे, और फिर H+ और OH- क्या देगा?
पानी। थर्मल पावर प्लांट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन डायरेक्ट कंबाइन होता है, तब जाके पानी बनता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, बस फंडा समझ लो। और बीच में there is the electrolyte. Once again we are using alkaline electrolyte in this. NaOH यूज किया गया है, which is separating the anodic and the cathodic compartment. और एनोड और कैथोड को वायर से ज्वाइन किया गया है, तो जैसे ये गैल्वेनिक सेल काम करेगा, दिस बल्ब विल ग्लो, indicating that the chemical energy through a spontaneous redox reaction has got converted into electrical energy. और फ्री में आउटपुट में आपको पानी भी मिलता है, which can be used in various purposes. In fact, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू यूज किया गया था इन द अपोलो म्यूनिक प्रोग्राम। अपोलो म्यूनिक के लॉन्च के टाइम पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज किया गया था। इनफैक्ट बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ईवीज यूज हो रही है, दे आर यूजिंग दिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसमें हाइड्रोजन को यूज किया गया है। एंड हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट, इट इज इजी टू यूज, बट देयर आर प्रॉब्लम्स आल्सो। हमने ऑलरेडी पढ़ा है हाइड्रोजन के चैप्टर में, इन द हाइड्रोजन इकोनॉमी पार्ट। व्हाट वर द फ्यू प्रॉब्लम्स? कैन यू थिंक अबाउट दैट? Storage. स्टोरेज, इनको बहुत बड़े बड़े और एक्सपेंसिव कंटेनर्स लगते हैं, और ये flammable. इनफ्लेमेबल, तो इसका हैंडलिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये दो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है तो फ्यूचर में मोस्ट ऑफ द सेल्स विल बी मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इनफैक्ट अपने इंडिया में भी ये ग्रीन फ्यूल के फॉर्म में यूज होना शुरू हो चुका है, दो लेट बट चालू हो चुका है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में, मुंबई में अभी कुछ ईवीज लॉन्च हुए थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Those EVs are completely running on the basis of fuel cells, which are normally the hydrogen oxygen fuel cells. इसके अलावा और भी बहुत टाइप के फ्यूल सेल्स होते हैं, मीथेन को भी यूज कर सकते हैं बिकॉज वो भी कॉमनली अवेलेबल है, फॉस्फेट वाले कंपाउंड्स भी यूज कर सकते हैं। तो जो फ्यूल्स कॉमनली अवेलेबल है, जिसका हैंडलिंग आसान है, उनको हम फ्यूल सेल की तरह यूज कर सकते हैं। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फ्यूल सेल। अब इसके रिएक्शन, तो रिएक्शन वंस अगेन एट द एनोड, एनोड पे कौन कौन? हाइड्रोजन। So hydrogen gas will undergo Oxidation. oxidation and will convert to H plus. H plus. अब यहाँ पर overall 2 moles of H2 are losing 4 electrons to give 4H plus. And those 4H plus ions through the porous partition, through this, travel through the electrolyte and combine with OH minus to give water. तो 4H प्लस और 4OH माइनस दे रहा है 4 मोल्स ऑफ पानी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे कौन? Oxygen. और ऑक्सीजन से बनेगा क्या? OH1. और उसका हाफ रिएक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं कि O2 gas will combine with 2H2O, which is already produced in the anodic reaction, along with the 4 electrons lost will be gained over here and will be converted into 4OH minus. हाँ कि नहीं? ये रिएक्शन लास्ट सेशन में आपको ब्रेक करके बताया था, जहां पर हमें n की वैल्यू ढूंढनी थी। तो आप क्लियरली देख सकते हो n का वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 लॉस्ट 4 गेन्ड, कैंसिल हो जाएगा। इज एनीथिंग एल्स गेटिंग कैंसल्ड इन द नेट रिएक्शन? H2. H2O, 4 H2O यहाँ पर है और 2 H2O लेफ्ट में है, तो नेट there is formation of 2H. and जहां जहां अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट है, वहां you will always see that the OH minus is being used as a
catalyst. Now look at the beauty. The 2 hydrogen from the anode is getting oxidized with the oxygen from the cathode, not directly. क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में आया? No. नहीं. In the form of ions they have combined and they have burnt with each other to give 2H2O liquid. समझा? And through the flow of electrons the electricity is generated, and that's how the fuel cell works. So fuel cells जिसमें हाइड्रोजन normally use करते हैं, they are quite environment friendly. है ना? बिकॉज कोई भी तरह का पोल्यूशन यहाँ पर नहीं हो रहा है. फ्यूल बर्न हो रहा है और बर्न होकर आउटपुट क्या मिल रहा है? पानी. तो एस्ट्रोनॉट्स ने जब ये फ्यूल सेल यूज किया था, दे एक्चुअली यूज दिस वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस. ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज किया गया था इसको. So basically these fuel cells get operated at a very high temperature so that the water which is getting generated get vaporized and then it is later condensed to form the H2O liquid. तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं बन रही है जो एनवायरमेंट को हार्म कर सके, इसीलिए दे आर ग्रीन फ्यूल्स. दे आर क्वाइट एनवायरमेंट फ्रेंडली. कार्बन एमिशंस यहाँ पर बहुत कम होते हैं या नेग्लिजिबल अमाउंट के होते हैं. बाकी कोई फ्यूल मीथेन यूज किया तो उसमें कार्बन एमिशंस होगा, और जितना कार्बन एमिशंस होगा दैट विल ऑब्वियसली अफेक्ट द एनवायरमेंट. क्लियर? तो आजकल हमारे मोदी जी जो समिट में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं ना, जीरो कार्बन एमिशन, जीरो कार्बन एमिशन. तो ही इज बिहाइंड दिस यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स. दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. And last but not the least, we have corrosion. Now, corrosion में metals जो होते हैं, they get deteriorated because of the presence of the moist air. So the deterioration of the metals in the presence of the moist air is simply called corrosion. Iron जब corrode होता है, it's called rusting. सिल्वर जब ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है तो ब्लैक टार्निश आ जाता है, उसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. ठीक है? ब्रास या फिर कॉपर के जो अलॉयज होते हैं, ब्रास, ब्रोंज, जब वो करोड होते हैं तो व्हाट इज द कलर आफ्टर दे गेट करोडेड? Black. कॉपर ब्लैकिश नहीं होता है, ग्रीनिश होता है. It's because of the formation of the copper carbonate and copper hydroxide. CuCO3 और CuOH twice बनता है. ये आ चुका है. आयन रस्ट होता है, सिल्वर टार्निश होता है, और जो ब्रास या ब्रॉन्ज या अलॉयज ऑफ कॉपर होते हैं या कॉपर इटसेल्फ जब करोड होता है तो वो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स अ ग्रीनिश सब्सटेंस व्हिच इज नथिंग बट द अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट, यानी CuCO3 और CuOH twice. तो नाउ यहाँ पर हम रस्टिंग की बात करने वाले हैं, विच इज वेरी कॉमन करोजन रिलेटेड विथ मेटेलिक आयन. रस्टिंग ऑफ आयन. करोजन इज अ जनरल वर्ड. आयन के लिए उसी करोजन को रस्टिंग बोलते हैं. ठीक है? अब आप सोचोगे रस्टिंग को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? अब खास बात यह है कि जब रस्टिंग होता है तो इट एक्चुअली अंडरगोज अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन एंड इट फॉर्म्स अ टाइनी गैल्वेनिक सेल. जब आयन रस्ट होता है ना, वो एक छोटा सा गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस करता है. आप अगर वहां पर ईएमएफ भी मेजर करोगे तो यू विल सी सम अमाउंट ऑफ ईएमएफ गेटिंग जनरेटेड व्हेन द आयन हैज रस्टेड. अब क्यों ऐसा होता है? लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द सेल रिएक्शन. तो आप देख सकते हो यहाँ पर आयन का प्लेट है जिसके ऊपर मॉइस्चर यानी वाटर का ड्रॉपलेट रखा हुआ है along with the oxygen present in the atmosphere. बेसिकली इसको मैं मॉइस्ट एयर बोल देता हूं. तो रस्टिंग सबसे ज्यादा कहां होता है? सी साइड वाले फ्लैट्स या बिल्डिंग्स में, क्योंकि वहां पर एयर काफी ज्यादा मॉइस्ट रहता है. बट ऐसे एरियाज में जहां पर ड्राई एयर रहता है वहां पे रस्टिंग बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है. मतलब काइनेटिकली रस्टिंग इज वेरी वेरी स्लो if the atmosphere is dry and rusting is very fast when the atmosphere is having moist air. Simple? Aki nahi?
Yes, sir. एक मिनट। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ, आयन एंड ऑक्सीजन में आयन विल अंडरगो Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर करोजन में आयन एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज प्लेस्ड बिलो। तो ऊपर वाला रिडक्शन, नीचे वाला ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आयन एज द मेटल will lose 2 electrons and will oxidize to ferrous। और ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर 2 मोल्स के लिए होता है, तो मैं अभी से 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 4 electrons. 4 electrons. Now these 4 electrons migrate towards the cathode and undergo reduction. अब एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ CO2 भी अवेलेबल होता है इन लार्ज कंपोनेंट, लार्ज कंपोजिशन, और H2O plus CO2 मिलकर बनाता है H2CO3 which is called carbonic acid, and we know it's a weak acid, so it will dissociate partially to give H plus ion and the carbonate, हाँ कि नहीं? So these H plus ions in the atmosphere are basically the result of the carbonic acid which is formed through water and carbon dioxide in the atmosphere. अब यहाँ पर the 4H plus ions gain the 4 electrons and convert into 4 hydrogen atoms, और वो जो 4 हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाता है 2 moles of H2O liquid। तो अब यहाँ पर the 4 electrons lost is gained over here, and now I can simply write the net reaction। तो वापस नेट रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो आयन इज गेटिंग व्हाट? Oxidized. ऑक्सीडाइज्ड इनटू द फेरस। तो यहाँ पर 2 moles ऑक्सीडाइज हुआ, and the H plus ions are getting reduced in the presence of oxygen to form 2H2O, and that is the reaction at the cathode। समझा? Yes, sir. अब जो फेरस आयन होते हैं ना, दे कैन इमीडिएटली ऑक्सीडाइज टू फेरिक। कैन यू टेल मी द रीजन ऑफ फेरस स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइजिंग टू फेरिक? कुछ रीजन है इसका? एनीवन? Half filled. Yes. Ferrous will have a configuration 3d6 versus ferric will have a configuration 3d5, and 3d5 वाला configuration half filled होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है, तो फेरस फेरिक के फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। तो फेरस जो है that again gets oxidized with the 4H plus and oxygen and gets oxidized to ferric, and this 4H plus and O2 gets reduced into the water molecule। बैलेंस करने का सिंपल ट्रिक, टेल मी 4H plus and O2 are gaining how many electrons? कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है ये? 4। तो फेरस से फेरिक में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है? 1। मतलब टू बैलेंस द नेट रिएक्शन आई नीड टू मल्टीप्लाई द Ion by 4. फेरस बाय 4। तो फेरिक भी 4 टाइम्स होगा एंड लॉस हो जाएगा 4 का। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब मुझे बताओ, फाइनली जब रस्ट होता है तो व्हाट इज द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रस्टिंग प्रोसेस? Fe2O3.SH2. करेक्ट। रस्टिंग जो होता है, रस्ट वो बेसिकली आयन ऑक्साइड को बोलते हैं, और आयन ऑक्साइड रेड कलर का होता है ना, ब्राउनिश रेड या रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पर जो फेरिक आयन है दैट कंबाइंस विद द x moles of H2O and that gets converted into Fe2O3.YH2O। So depending on the moisture which is available in the atmosphere,
this rusting का kinetics will be related. So ferrous finally forms this Fe2O3 dot YH2O, that is nothing but the formula for rust. Understood? So iron in the presence of moist air undergoes oxidation to form ferrous. Ferrous once again oxidizes to ferric, and ferric finally gets converted into the reddish brown oxide of iron, which is Fe2O3. So rusting is a spontaneous redox reaction, and that is why a tiny galvanic cell gets generated when the rusting process happens. अब ये रस्टिंग काफी खतरनाक है बिकॉज आयन इज यूज्ड इन वेरियस कंस्ट्रक्शन एंड मेनी अदर प्रोसेसेस. तो इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया जाता है? व्हाट आर द प्रोसेसेस? Galvanization. गैल्वेनाइजेशन. क्या करते हैं गैल्वेनाइजेशन में? Coating with zinc. Yes. अब tell me if you have understood why the iron is coated with zinc. गैल्वेनाइजेशन में खाली जिंक ही क्यों लिया? कॉपर क्यों नहीं लिया? सिल्वर क्यों नहीं लिया? Zinc does not tarnish. Sorry? Zinc does not corrode. Zinc does not corrode. और कुछ? Can you tell something with respect to electrochemical series? अच्छा, हमें आयन को ऑक्सीडाइज होने नहीं देना है, मतलब इसको कोट करना पड़ेगा विथ समथिंग व्हिच विल प्रिवेंट द आयन टू अंडरगो. रस्टिंग प्रिवेंट करना है, मतलब हमें आयन को ऑक्सीडाइज होने नहीं देना है. तो जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, तो अगर मैं आयन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर लूं तो ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा. डू यू अग्री? Yes, sir. एंड आयन विल बेसिकली अंडरगो Reduction. एंड जिंक विल अंडरगो Oxidation. oxidation. So can I say zinc has sacrificed itself by undergoing oxidation and forced iron to undergo reduction? है ना, बहुत भारी वर्ड है ये. Zinc has sacrificed itself by undergoing oxidation. In fact, इसको sacrificial protection ही बोलते हैं. Zinc अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, preventing the iron to undergo oxidation. That is why iron can be coated with any metal which is below the iron in the electrochemical series. तो बहुत सारे जो आयन पाइप्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम भी यूज किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम भी उसके नीचे ही है. तो ये भी क्या करेगा? आयन को रिड्यूस करेगा और मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इसको भी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं. लेकिन आयन और कॉपर का कोटिंग नहीं चलेगा, because copper और iron में copper will undergo reduction, iron will be once again undergoing oxidation. तो यहाँ पर कोई बलिदान हुआ ही नहीं है, मतलब आयन यहाँ पर सेव नहीं होगा, वो फिर भी करोड़ हो जाएगा. इसीलिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में, गैल्वेनाइजेशन में, या फिर गैल्वेनाइजेशन के अलावा कोई भी और प्रोसेस में जहां पर जिंक को हमें रस्टिंग से प्रिवेंट करना है, इसको कोट कर दिया जाए विथ एनी मेटल प्लेस्ड बिलो Fe in the electrochemical series. Understood? Yes, sir. या फिर कोटिंग विथ एनी मेटल बिलो Fe, यानी Mg is one example. ठीक है. अब आगे sacrificial protection के अलावा we also have passivization या passivation, sorry. अब पैसिवेशन में क्या करते हैं? मेटल को सिंपली डाइल्यूट HNO3 में डिप कर दिया जाता है. अब डाइल्यूट HNO3 एक्ट्स एज अ गुड Oxidizing agent. तो यहाँ पर मेटल विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स Oxide. ऑक्साइड. तो मेटल के ऊपर अगर ऑक्साइड का कोटिंग आ जाता है तो वो ऑक्साइड बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा, जो कि मेटल को ऑक्सीडाइज करने नहीं देगा. इनफैक्ट बहुत सारे मेटल्स में ये ऑक्साइड लेयर
नेचुरली डेवलप होता है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हमेशा प्रेजेंट होता है. इसीलिए पुराने जमाने में एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज किए जाते थे, बिकॉज वो बहुत लंबे टाइम तक चल सकते हैं, क्योंकि वो करोड़ नहीं होते हैं, because there is oxide layer which is already protecting the metal to not undergo oxidation. तो इसी को हम आर्टिफिशियली पैसिवेशन के थ्रू ऑक्साइड लेयर अलग अलग मेटल्स के लिए डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. नाउअडेज एल्यूमिनियम की जगह वी यूज द स्टील कंटेनर्स, बिकॉज दिखने में ज्यादा अच्छे हैं, और स्टील जो है दैट्स एन अलॉय ऑफ आयरन विथ मेनी अदर मेटल्स लाइक निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन. तो अलॉय करने के बाद जो प्योर आयरन है वो चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, एंड स्टील इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट करोडेड. दैट इज वाई ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, और बहुत सारे यूटेंसिल्स अब जो घर में यूज करते हैं वो जनरली स्टील्स के होते हैं. क्लियर. और टेम्पररी में हम पेंट भी यूज कर सकते हैं. पेंट में क्या होता है, हम मेटल के ऊपर पेंट का एक लेयर डेवलप कर देते हैं. ठीक है. तो वो लेयर जो है दैट विल प्रिवेंट द मेटल और आयरन टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. लेकिन ये टेम्पररी प्रोसेस है, बिकॉज पेंट में अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ गया ना, तो मॉइस्ट एयर को तो चांस मिल जाएगा इसके अंदर घुस के इसको पूरा करोड कर दिया जाए. ठीक है. तो बाहर से तो आपको लगेगा पेंट है, लेकिन अंदर से वो मेटल खोखला हो चुका रहेगा, पूरा का पूरा सड़ चुका रहेगा, है ना. तो पेंट एक टेम्पररी मेथड है. गैल्वेनाइज्ड आयरन इज द मोस्ट एफिशिएंट मेटल, और सारे कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में गैल्वेनाइज्ड आयरन को यूज किया जाता है, या फिर स्टील के फॉर्म में यूज किया जाता है, दैट इज एन अलॉयड फॉर्म. तो अलॉय भी एक प्रोसेस ही है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन या फिर रस्टिंग, अलॉइंग. समझा. ना कि नहीं. Yes, sir. That's it. With this, we complete with the chapter electrochemistry. Just few MCQs related to this. कैसे type के questions आते हैं. Commercial cells and corrosion. When a lead storage battery is discharged, PbSO4 is formed, Pb is formed, SO2 is consumed, या H2SO4 is formed. सोचो क्या हो रहा था डिस्चार्जिंग के टाइम पे. PbSO4 is formed. Pb और PbO2 दोनों ही PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा था. मतलब PbSO4 फॉर्म हो रहा था और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म नहीं, कंज्यूम हो रहा था, और इसी कंजम्पशन की वजह से सेल का EMF ड्रॉप हो रहा था. नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ लेड स्टोरेज सेल, द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द सेल Decreasing. increasing, decreasing, remains unchanged, या initially increase but decrease subsequently. Decreasing. Why? H2O is formed. H2O is formed. तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो कंज्यूम हो रहा है, that is basically now present with water, so it's getting diluted and the concentration was going on decreasing. In hydrogen oxygen fuel cell, the reaction occurring at cathode. Cathode पे कौन? हाँ, अरे भाई इन दोनों में कैथोड में कौन? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एनोड पे था, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन कैथोड पे था. और ऑक्सीजन का जो हाफ रिएक्शन है दैट सिमिलर टू हाफ रिएक्शन व्हिच वी हैड सीन इन इलेक्ट्रोलाइसिस. So what is the answer? First one. First one. O2 plus 2H2O plus 4E minus gives you 4OH minus. सी मैंने क्या बोला था, इस पूरे सेक्शन में क्वेश्चंस इसी तरह आएंगे. हाफ रिएक्शन, नेट रिएक्शन, या फिर कौन से कंपोनेंट यूज कर रहे हैं और क्या अफेक्ट हो रहा है. विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स करोजन? ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ग्रीन डिपॉजिट ऑन बैटरी टर्मिनल्स, ब्लैक डिपॉजिट ऑन सिल्वर, या ऑल? All.
तो ब्राउन डिपॉजिट आयन ऑक्साइड की वजह से हो रहा है. ग्रीन डिपॉजिट ऑन बैटरी टर्मिनल्स जो जनरली कॉपर के होते हैं, दैट इज ड्यू टू, लिखो, अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट. एमसीक्यू पूछा हुआ है. अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, ये बनता है. एंड ब्लैक डिपॉजिट ऑन आयन इज नथिंग बट ड्यू टू द आयन का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ब्लैक डिपॉजिट ऑन सिल्वर कॉइन इज ड्यू टू द सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O जो ब्लैक कलर्ड रहता है, इसलिए वो टार्निश बोलते हैं. ब्लैक डिपॉजिट ऑन सिल्वर इज बेसिकली कॉल्ड टार्निशिंग. टार्निशिंग, ये वर्ड याद रखना. ये सब करोजन के अलग अलग प्रोसेसेस है. तो आंसर विल बी ऑल. अंडरस्टूड. Yes, sir. That's it. We complete with electrochemistry chapter. So please complete the module 1 and module 1 homework वाले part के MCQs और PYQs 2019 तक दिया हुआ है. Please go through the PYQs. Start referring them now. अभी जो जो चैप्टर्स आप रिवाइज करते हो चैप्टर वाइज उसके PYQs आप गो थ्रू कर सकते हो. मैंने आपको एक लिंक भेजा था, वो लिंक से आप उस ऐप को डाउनलोड करो. शायद राम सर ने भी भेजा होगा आपको. भेजा है क्या? Yes. हाँ, तो उसको डाउनलोड करो और जैसे जैसे कोई भी चैप्टर का रिवीजन आता है प्लीज डू द PYQs नाउ. आपके PYQs कम से कम 2 बार हो जाने चाहिए. अब तो गो थ्रू करो और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वहां पर मार्क भी कर सकते हो. यू कैन मार्क इन दैट ऐप दैट दे आर इंपॉर्टेंट, या फिर कुछ प्रॉब्लम या डाउट्स है तो उसको मार्क कर सकते हो और बाद में उसको डायरेक्टली रेफर कर सकते हो. तो अच्छा ऐप है, गो थ्रू करो. और नेक्स्ट वीक में आई विल कंप्लीट द सॉल्यूशंस एंड उसके बाद विल स्टार्ट सॉल्विंग द PYQs लास्ट ईयर पेपर्स. तो एवरी वीक 2-2 पेपर्स का सॉल्विंग होगा. एडवांस के लिए भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे एंड मेंस के लिए भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे. एवरी वीक विल हैव 2 सेशंस ऑन पेपर डिस्कशंस. आई विल टेल यू बिफोर हैंड कि 2020 का फेब और मार्च के सेशन के ये पेपर्स गो थ्रू करने. तो आप पहले से गो थ्रू करोगे, फिर हम सारे डाउट्स को डिस्कस करेंगे. So it will be very efficient way of revising and recollecting the concepts. Fine. Yes, sir. Yes, sir.